ملک کی مشہور معروف تذکرہ ندوۃ العلماء کے استاد تفسیر مولانا علاء الدین ندوی صاحب کا ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کرائیں. مولانا محمد علاء الدین ندوی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میرے مقالے کا موضوع ہے جناب صدر اور معزز سامعین، میرے مقالے کا موضوع ہے زمین کی اصلاح میں ایمان بالآخرہ کا کردار. زمین کی اصلاح میں ایمان بالآخرہ کا کردار. مقالہ میرا تفصیل ہے، انشاءاللہ وقت کے اندر میں اپنی تفصیل پیش کروں. انسان کی صحیح پوزیشن. انسان ابتدائی سے اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہا. ایک گروہ جھوٹے پندار میں مبتلا ہوا. تکبر، سرکشی اور انا پرستی کے ذوق میں من اشد منا قوہ کا دعویٰ اور انا ربکم الاعلی کی جھوٹی خدائی کا اعلان کیا. یہ کھلم کھلا بغاوت اور خود مختاری کا اعلان تھا. اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ایک غیر ذمہ دار مخلوق بنا رہا اور شتر مہار جانور جیسی زندگی گزارتا رہا. اس قماش کے لوگوں نے اللہ کی زمین کو اپنے جبر، ظلم اور شر و فساد سے لبریز کر دیا. دوسرا گروہ رہا جو انسانیت کو اتنا گرایا اور اپنی عقل کو اتنا بے بس ٹھہرایا کہ دنیا کی حقیر ترین چیزوں کے سامنے اپنے کو جھکا کر دم دیا. قرآن کریم نے ان دونوں تصور کو غلط قرار دیا ہے. اس نے متکبرین کے فخر و غرور اور انا پرستی کے بت کو پاش پاش کیا. اس نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی. ذرا اپنی پیدائش کے اسباب پر غور کرو. دنیا رنگوں میں آنے سے پہلے جنین کی نشو نما کے تنگ و تاریک محل کو دیکھو. تم ایک نجس بوند سے مادر رحم میں پرورش پا کر گندے راستوں سے باہر آئے. مگر اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے
روحانی لحاظ سے اس انسان کو اللہ نے ایسی عزت و شرف بخشی جو اشرف المخلوقات قرار پایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ایمان بالآخرت کی اہمیت. ایمانیات کی آخری کڑی جس پر ایمان لانے کی دعوت حضرت آدم کا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب دیتے آئے ہیں. ہر زمانے میں انبیاء کے سچے پیروکار اس عقیدے پر ایمان رکھتے آئے ہیں اور ہر دور میں اس کے انکار کرنے والوں کو کافر گردانا گیا ہے. ایمان بالآخرت شریعت اسلامیہ میں نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا سب سے بڑا محرک ہے. ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور اسی پر صرف کیا گیا ہے، لیکن آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان باللہ تک بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. ایک عقیدے پر ایمان لائے بغیر پوری زندگی اور پوری زمین فساد سے لبریز ہو جانا چاہتی ہے. علامہ شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ہے. یوم آخرت اور حیات آخرت اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے اور قرآن پاک میں ایمان باللہ کے بعد اسی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو ہمارے انسانی کے نتائج کا ریشہ ریشہ بے خبر سے اکھڑ جائے. روز جزا کو کیوں آنا چاہیے؟ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخرت کی زندگی اور جزا و سزا کے تصور پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عقیدے پر اس شد و مت کے ساتھ کیوں اتنا زور صرف کیا گیا؟ مسلمان ہونے کے لیے اسے ایمان باللہ کے بعد دوسرے مقام پر کیوں رکھا گیا اور کیوں اس پر ایمان لائے بغیر اللہ اور رسول کے ایمان کو بغیر ناپے بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی عملی زندگی کا اس عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے. دلائل و براہین کے تناظر میں دیکھا جائے تو آخرت کو لازمان آنا ہی چاہیے. ان دلائل کا تذکرہ قرآن کریم نے بہت ہی شفقت کے ساتھ کیا ہے، لیکن ہمیں ان سے تعرض کرنا نہیں ہے. ویسے بھی اس واقع آخرت ہمارا موضوع نہیں ہے، تاہم آخرت کے چند مقتضیات کا ذکر ہم ضرور کریں گے مگر ارشاد ہوں. اولاً ضمیر کی آواز، جس کو قرآن کریم نے سورہ قیامہ میں نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ برائیوں کو متنبع کرنے والا خیرخواہ دوست. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نفس لوامہ ہمیشہ شہادت دیتا ہے. انسان کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جن برائیوں پر آج تم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو وہ لازماً کبھی نہ کبھی اس کی سزا ملنی چاہیے. اور وہ دن آخرتی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں تو آدھی ادھوری انصافی مل پاتا ہے. نمبر 2، خیر و شر کا یہ امتیاز کا بدیہی تقاضا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس انسانی اور اس کی ذات کے قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ دو متضاد اور مخالف چیزوں کے نتائج یکساں نہیں ہوتے. مولانا امین حسن اصلاحی فرماتے ہیں حق و باطل میں امتیاز اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کا لازمی تقاضا ہے، ورنہ یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے جس کے خالق کے نزدیک معاذ اللہ نیکی اور بدی دونوں یکساں ہیں. ثالثاً، یہ دنیا ادھوری اور نامکمل اور تکمیل کی محتاج ہے. یہ عظیم کائنات حکمتوں، عظمتوں، خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ اس میں بے نظیر نظم و نسق پایا جاتا ہے. تخلیقی حسن و جمال کا نادر شاہکار ہے. اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو دکھ جھیلتے جھیلتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی نیکی کا کوئی جزا اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اور بہت سے بدکار لوگ ہوتے ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی. یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لازماً آخرت کو ہونا چاہیے. یہاں مولانا مودودی کی میں نے طویل اقتباس سے نقل کیا ہے، لیکن میں اسے چھوڑتا ہوں. رابعاً، چوتھی چیز، تصور سے پرے پرلطف و مسرت کا ابدی مرکز. دوسری مخلوقات کے برعکس انسان مستقبل کی حسین تصویریں اپنے تخیل کے آئینے میں سجاتا ہے اور انہیں پانے کی کوشش بھی کرتا ہے. وہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے جمیل نیاز پر ہزاروں سجدے تڑپتے رہتے ہیں، اور وہ ہے کہ دیدار الہی کے لیے مچل مچل کر رہ جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی خواہش کو آخرت کے وعدے پر اٹھا رکھتا ہے. اس کے نہا خانے دل میں آرزوؤں اور خواہشات کی وسیع دنیا رکھی گئی.
مگر اپنی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق اپنی دنیا بسا لینے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اس دنیا کی مشکلات، مسائل اور تنگنائیوں سے آزاد ہو کر ایک مسرت بخش دنیا اور دل پسند زندگی کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے اپنی آخرت کو لازماً آنا چاہیے۔ پانچویں چیز، ایمان کا تعلق جو ہے وہ مخفی چیز ہے، دل سے، اور دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے ایمان سچ مچ کا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ آخرت میں کرے گا۔ اس کا فیصلہ اللہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ آخرت میں کرے گا۔ ایمان کے بارے میں دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس کا ایمان خالص اور جس کے ایمان میں کھوٹ ہے، ظاہر اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایمان و عمل صالح کے فیصلے کے لیے اور ثواب و عقاب کی شکل میں درست نتائج آنے کے لیے یوم آخرت کا ہونا لازمی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھٹی چیز، قانون تجویز کا تقاضا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مذکر کے ساتھ مؤنث اور خیر کے ساتھ بدی اور شر کے ساتھ جو ہے دین اور حق کے ساتھ باطل اور دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ لگا دیا گیا ہے۔ کائنات میں تجویز کے قانون پر خلقنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، تجویز کے قانون پر یہ دنیا قائم ہے۔ یہاں پر احمد غامدی کے اقتباس میں نقل کرتا ہوں، صرف 2 سطریں پڑھتا ہوں۔ چنانچہ جیسی انکشاف ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک آخرت بھی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے خلا بھر گئے، ہر سوال کا جواب مل گیا، تمام معلوم شواہد کی توجیہ ہو گئی اور ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک بیٹھ گئی۔ آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں جو دنیا ادھوری معلوم ہو رہی تھی وہ مکمل نظر آنے لگی۔ کائنات کا اصلی حسن و جمال میں نقاب ہو گیا۔ انسان اب اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہ سکتا ہے جس مطلوب چیز کو مرنے سے پہلے نہ پا سکا وہ اسے موت کے بعد لازماً پائے گا۔ اس کے بعد اپنے طبی مقالے کی چیزیں میں چھوڑتا ہوں اور میں آتا ہوں اس بحث پر۔ اصل موضوع کا جو دنیا کی اصلاح ہونی ہے، ڈاکٹر عبدالحق انصاری کہتے ہیں قرآن مجید کے احکامات کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا مقصد دنیا کی زندگی کی تعمیر ہے۔ شریعت اسلامی کے مقاصد میں دنیا کی فلاح و سعادت بھی اسی طرح داخل ہے۔ دنیا کی سعادت و سعادت بھی اسی طرح داخل ہے جس طرح سے آخرت کی کامیابی اور بھلائی۔ شریعت نے 5 بنیادی انسانی ضروریات کو ضرورات خمسہ، مقاصد خمسہ اور اصول خمسہ جیسے ناموں سے تعبیر کیا ہے اور ان کے تحفظ پر بہت زور دیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، عربی عبارت میں نہیں پڑھتا، ان اصول خمسہ کی حفاظت جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ مصلحت ہے اور وہ جن چیزوں سے ان کو نقصان پہنچتا ہے وہ مفسدہ ہے، اس کا ازالہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں شریعت کے احکام جلب مصالح اور ازالہ مفاسد کے لیے وضع کیے گئے ہیں، پھر وہ مصالح کی 2 تقسیمیں کرتے ہیں، دنیاوی مصالح اور اخروی مصالح۔ ان مصالح و مفاسد کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ عز الدین عبدالسلام فرماتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ فِي الْقُرْآنِ اسْتِعْمَالُ الْحَسَنَاتِ فِي الْمَصَالِحِ وَالسَّيِّئَاتِ فِي الْمَفَاسِدِ۔ قرآن میں حسنات کا لفظ مصالح کے مفہوم میں اور سیئات کا لفظ مفاسد کے مفہوم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس وقت زمین کی اصلاح کے سلسلے میں میں نے کئی نکات یہاں اپنے مقالے کے اندر بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی بات ہے ثواب و عقاب اعمال کے رد عمل کا نام ہے۔ ثواب و عقاب اعمال کے رد عمل کا نام ہے۔ آخرت اور ایمان جو اس کا انکاری وہ محور ہے جس کے ارد گرد جنت و دوزخ گھومتے ہیں۔ جنت کو صالحین کا دائمی دل پسند اور دوزخ کو کافروں کا اور باغیوں کا آبادی اور دارالعذاب کہا گیا ہے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم ہے اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، اور اسی مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو یہ تمہاری اعمال ہیں جو تم کو لوٹا کر یہاں دے رہا ہوں، تو کوئی جزائے خیر پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے، جس کو برائی ملے وہ خدا کو وہ خود کو ملامت کرے۔ دوسری چیز ہے فطری عملی اور عقلی جذبہ۔ دنیا کا قانون ہے کہ بڑی بڑی تکلیفوں کو پانے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں،
اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر پرست لوگ کے نقد ادھار کی طرف ان کا جی جاتا ہے، اس لیے جو نقد اور نفع فوری ملتا ہے اس کی طرف وہ لپکتے ہیں، اور جو چیز دیرپا ہوتی ہے مگر بہت عظیم الشان ہوتی ہے اس کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا۔ دنیا میں جو انقلابات لانے والے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مصیبت کو برداشت کر کے بڑے بڑے انقلابات کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے عمل کا ریکارڈ۔ عمل کا ریکارڈ، دنیا میں حقیقت میں جو چیز وجود میں آ جاتی ہے وہ فانی نہیں ہوتی۔ انسان کے بارے میں کہتے ہیں فانی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ ابدی اور ازلی، اس کا ابدی اور ازلی ہونا اس کی ذاتی صفت نہیں یا عطائی صفت ہے۔ انسانی زندگی کے 4 مراحل، 9 مہینے وہ ماں کے کال کوٹری کے اندر رہتا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی گزارتا ہے، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے قبر کے اندر رہتا ہے، اور چوتھا مرحلہ جو ہے آخرت کا ہے۔ انسان مرتا نہیں، وہ کہاں مرتا ہے، وہ تو اس کے اندر سے روح نکلی، جسم تو اس کا تعلق مٹی سے تھا، وہ کہاں ہوئے۔ رابعہ جنت کا وارث صالح انسان کا، جنت کا وارث صالح انسان ہوگا۔ اور حضرت آدم صبح جو میں نے بات کی تھی وہی بات یہاں بھی ہے کہ اصلاً تو آدم جنت کے باسی، غلطیوں کی وجہ سے نکالے گئے، امتحان گاہ نکالے گئے، اب اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اور ان کی پوری ذریت پھر اسی جنت میں ان کو واپس ہونا ہے۔ 5ویں چیز ہے دنیا اور آخرت کے مماثل سزا۔ بعض سزائیں ہم کو دنیا کی مل جاتی ہیں مگر کم، یا یقینی طور پہ نہیں ملتی۔ دنیا دار الجزا، دنیا دار العمل ہے، دار الجزا ہے۔ بس میں نے اپنی بات ختم، آخری پیراگراف پڑھتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حسنہ سے دنیا کا چمن گل گلزار اور باغ و بہار بنتا ہے، اسی حسنہ سے آخرت کی بہشت رش کے بدامہ بنتی ہے۔ کتنا بدعقل ہے وہ کسان جو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ابر کا متمنی اور صرف ایک فصل بہار کی سیرابی کا خدا سے امیدوار ہوتا ہے، حالانکہ خدا تو چاہتی ہے کہ ازل تا ابد اس کی کھیتی کو سیراب کر جائے۔ اس طرح کے بدعقل اور کوتاہ نظر شخص کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیا کی فصل و لالا و گل کی قدر و قیمت تو بس اسی حد تک ہے کہ وہ آخرت کے لیے دارالعمل ہے، لہذا اسے سنوارا بھی جائے تو صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے سنوارا جائے۔ اور یہی مطلب ہے اس قرآنی دعا کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال ابھرتا ہے وہ یہ کہ اگر ایمان بالآخرت کی وجہ سے اصلاح کا کام ہوگا یا ایمان بالآخرت کا کردار اصلاحی کاموں میں بہت اہم ہے، تو پوری دنیا میں مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہیں اور بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے ادارے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ 55 سے زائد مسلم ممالک بھی ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کو نافذ کر رہے ہیں اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کی اصلاحی سرگرمیاں نظر نہیں آتی۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ایمان بالآخرت کا کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان بالآخرت کے سلسلے میں کچھ کمزور ثابت ہوئے ہیں، تو ایسے اس سلسلے میں کچھ وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہوتا ہے یہ بات میں نے اپنے مقالے کے اندر سوال بھی ابھارا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے، اس لیے میری مشاقت جواب دینے سے بہتر ہے مجھے پڑھیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی 100 ارب مسلمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تو رکھتے ہیں، اور اس لیے گزرے دور میں بھی ثواب و عقاب کا تصور بھی موجود ہے اور ماشاءاللہ جنت کے خریدار بھی بنتے نظر آتے ہیں، پھر کیوں اللہ کی زمین روز بروز فساد سے لبریز ہوتی جا رہی ہے؟ جو خود مسلمانوں میں ظالم اور مظلوم پائے جاتے ہیں، جو غرور کھسوٹ دھوکہ دھڑی ڈاکہ زنی بے حیائی زناکاری سودخوری رشوت ستانی کالا بازاری قتل و غارت گری اور ہر نوع کے حرام کاری میں مبتلا، اس کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا اقرار زبانی تو کر لیا ہے، مگر دل ان کا کافرانہ اور منافقانہ بیماریوں کی آماجگاہ ہے، ان کا تصور آخرت ہچکیاں دے رہا ہے، ان کے ایمان میں زبردست ملاوٹ ہے۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ زندگی بخش ثابت ہو، وہ الٹے منصف ثابت ہو رہا ہے۔ ایمان بالآخرت ایک لگام ہے جو ہر نوع کی معصیتوں سے کے پیچھے بغل بھاگنے سے روکتی ہے۔ انہوں نے زبان سے اپنے اوپر لگام
लगाने का इकरार तो किया है, मगर अमलन उसकी रस्सी बहुत लंबी और ढीली छोड़ रखी है। अब उनकी लगाम इतनी दराज और ढीली पड़ गई है, वो तकरीबन शुद्ध बेमहार और बिन नथे बैर की मानद हो गए हैं। अब उनका ईमान ख्वाहिशात पर गलबा पाने के बजाय ख्वाहिशात के सामने सिपर डाल देता है। वो अपनी इस्लाम से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, मगर कुफ्र को नाराज़ और उसके खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते। उनको आइंदा सोने से ज़्यादा कीमती इनाम मिलने का अंदाज़ा तो है, मगर उन्हें उधार पे यकीन नहीं, इसलिए वो कांसे के सिक्कों को जो नफ्त मिल रहा है छोड़ नहीं सकते। उनका अज़ली और अबदी होना उनकी ज़ाती सिफत नहीं, या अताई सिफत हो। तो मैं अताई सिफत के तनाजुर मैंने कहा कि इंसान फ़ानी नहीं, ज़ाती तो कुछ भी नहीं किसी के पास, सब तो अताई है। कौन सी चीज़ ज़ाती किसकी है? नहीं तो आप जन्नत दोज़ख के बारे में क्या कहेंगे? जन्नत दोज़ख तो हमेशा है, क्या हम नहीं कहेंगे जन्नत अज़ली है और अबदी? इस ताबीर में क्या फवा है? आयत में जो कहा गया उसका क्या मतलब? हर चीज़ फना हो जाती है, हर चीज़ फना हो जाती है। इंसान के अलावा सारी चीज़ें मरियामेट होकर ख़त्म हो जाती हैं, उनका दोबारा वजूद नहीं। इंसान दोबारा उसका वजूद है। क़यामत में आखिर जिस्म के साथ वो उठेगा, दोबारा जिंदा हुआ नहीं हुआ, वो एक मरहला है। कब्र जिंदगी दुनिया का एक मरहला है जिसमें दुनिया की मिट्टी पीछे रह जाती है, उसके अंदर जुरूह है, वो आगे चली जाए और फिर अल्लाह ताला क़यामत में उस जिस्म के साथ दोबारा उसे उठाएगा। क्या दोबारा जिंदा हुआ नहीं हुआ? या कब्र में मरा हुआ? या उसे अज़ाब नहीं हो रहा है, या उसे जो है उसके लिए नेमतें फराहम नहीं की जा रही? तो मजाजी एतबार से यकीनन वो मर गया। इसी ताबीर में मैं समझता हूँ कि मजाजी ताबीर है, लेकिन हकीकत में जो है नई जिंदगी का आगाज हुआ। मौलाना मोहम्मद इरहान इस्लाही साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास और सामीन इकराम और महतरम, जैसा कि नाज़िम इजलास ने बताया कि मेरे मक़ाले का मौज़ू है कुदरती हवादिस व आफ़ात, फ़साद फिल अर्ज़ का नतीजा। खालिक़ अर्ज़ व समा ने इस कायनात की तख़लीक़ इंतहाई एहतमाम के साथ फरमाई है और इसका इंतज़ाम एहतराम वो खुद संभाले हुए है। जैसा कि इरशाद बारी ताला इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शी अल-लैला अन-नहारा यत्लुबुहु हसीफ़an वश-शम्सा वल-क़मरा वन-नujūma मुसख़ख़रातिन बिअमरिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल-अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब वही है, वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ, ढांकता है रात को दिन भर, जो उसका पूरी सरकर्मी से ताक़ुब करती है, और उसने सूरज और चाँद और सितारे पैदा किए जो उसके हुक्म से मुसख़्ख़र हैं। आगाह के खल्क़ और अम्र इसी के लिए ख़ास है। बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह आलम का रब। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को मीज़ान अक़ल पर कायम किया है और हज़रत इंसान को भी इसी मीज़ान अक़ल को कायम रखने और उसकी पैरवी करने की हिदायत फरमाई है। इरशाद है वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान। और अल्लाह ने आसमान को ऊंचा किया और इसमें मीज़ान रखी कि तुम भी मीज़ान में तजावुज़ न करो और ठीक ठीक तौलो पूरे इंसाफ के साथ और वज़न में कमी न करो। जब इंसान क़याम अदल से गुरेज़ करता और हिदायत रब्बानी से मुँह मोड़ता है तो फसाद फिल अर्ज़ रोनुमा होता है और अल्लाह ताला को अपनी ज़मीन पर फसाद सख्त नापसंद है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस्लाह की कोशिश करने वालों की कारकर्दगी को हमेशा सराहा है और मुस्लिमीन की कोशिशों को ज़ाय न करने का वादा फरमाया है। इरशाद है इन्ना ला नुज़िअु अजरल मुस्लिमीन, हम मुस्लिमीन का अजर ज़ाय नहीं करेंगे। नीज़ ज़मीन को फसाद से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने यह तदबीर इख्तियार फरमाई है कि बाज़ को बाज़ के ज़रिए दफ़ा करता है ताकि दुनिया में अमन और चैन बरकरार रहे, वरना दीगर अमलाक व जायदाद तो पूजा खुद मस्जिदें, खानकाहें और इबादतगाहें भी मुफसिदीन की चेरादस्तियों से महफूज न रह पाते। इरशाद रब्बानी है
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ فساد کے معنی بگاڑ کے ہیں، اور اسی سے افساد ہے جس کے معنی بگاڑنے، خراب کرنے اور درہم برہم کرنے کے آتے ہیں، اور یہ اصلاح کی ضد ہے۔ سورہ نحل آیت 48 میں ان دونوں لفظوں کا استعمال کر کے دونوں کی حقیقت و معنویت واضح کر دی گئی ہے۔ ارشاد رب باری تعالیٰ ہے یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو میزان عدل پر قائم کیا ہے، اور میزان عدل کے قیام کا سب سے اعلیٰ مظہر توحید کا اقرار ہے، اس لیے شرک لازمی طور پر موجب فساد بلکہ فساد کی جڑ ہو، کیونکہ شرک ایک سے زائد خداؤں کی خدائی کو تسلیم کرنا ہے، اور جب ایک ہی مملکت میں ایک سے زائد فرمانروا مان لیے جائیں گے تو باہم تصادم ہوگا، اور تصادم باعث خیر و صلاح نہیں بلکہ باعث فساد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خداؤں کی خدائی کارفرما ہوتی تو کبھی نہ کبھی ان میں تصادم ضرور ہوتا، جس کے نتیجے میں کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا اس کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا خدا ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح اس کائنات کی بقا کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کے اندر ایک ہی خدا کا ارادہ کار فرما ہے، اسی طرح اس زمین کی صلاح کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر ایک ہی خدا کا قانون چلے۔ اگر خدا کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون اور نظام اس میں چلایا جائے گا تو اس زمین کا امن و عدل درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو کے رہ جاتے۔ فساد فی الارض قرآن مجید کی نگاہ ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجہ میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں معروف مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کے ضمن میں فساد فی الارض پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ فساد فی الارض قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم اس نظام حق کو بگاڑنا یا اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ واحد کی عبادت اور اس کے احکام قوانین کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے، اور جس کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا نظام تکوینی اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی رب قدیر و قہار کا ارادہ کار فرما ہے، اگر اس کے اندر کسی اور کا زور و اختیار بھی چلتا ہوتا تو یہ آن کے آن میں درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ اسی طرح اس کے نظام تشریع کے اندر اگر کسی اور کی عبادت و اطاعت کے جواز یا دخل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے اس کا مزاج بالکل ہی بگڑ کے رہ جاتا ہے، اور یہ بگاڑ سارے نظام تمدن کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ کوشش قرآن کے نزدیک فساد فی الارض کے حکم میں داخل ہے جو اس بگاڑ کا دروازہ کھولے، اگرچہ یہ کوشش اصلاح کے نیک ارادہ ہی کے ساتھ کیوں نہ کی جائے۔ اس زمین میں انسان کی حیثیت اصل حکمراں کی نہیں بلکہ اس کے نائب اور خلیفہ کی، اصل حکمراں اور قانون ساز اللہ تعالیٰ ہے۔ پس جب بھی انسان اپنی اس حیثیت کو فراموش کرتا ہے فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اللہ رب العزت کے حدود میں جا گھستا ہے، بلکہ زبانی حال سے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ
अपनी ज़मीन में फसाद को नापसंद और इस्लाह को पसंद फरमाता है। लिहाजा जब जब किसी कौम के अंदर फसाद रोनुमा होता रहा है, अल्लाह ताला अंबिया किराम को भेजता रहा है ताकि वह अल्लाह की ज़मीन को जुल्म, उद्वान और फितना और फसाद से पाक करे। लेकिन इंसानों की बदअमालियों से ज़िंदगी के हर शोबा में फसाद का गलबा रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला के इरशाद है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी हर जगह लोगों के अमाल के नतीजे में फसाद छा गया ताकि अल्लाह उनके बाज़ करतूतों का मज़ा चखाए ताकि ये रुजू करें। इस आयत के मफ़हूम को चंद अल्फाज में समेटा जाए तो यही होगा कि इस कायनात के अंदर जो भी कुदरती हवादिस व आफात पेश आए वह इंसानों की बदअमालियों और फसाद के अर्ज़ का नतीजा थे। लिहाजा हम उन कौमों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे जो अपनी बदअमालियों की वजह से ज़मीनी या आसमानी हवादिस व आफात के शिकार हुए, ताकि कुरान मजीद का ये दावा उसकी आयात बैयिनात से मज़ीद मुतल्लक़ हो जाए। लेकिन इसके कबल हम इन अमाल और अफ़ाल का जिक्र मुनासिब समझते हैं जिनको कुरान मजीद ने फसाद फिल अर्ज़ से ताबीर किया है। फसाद फिल अर्ज़ की मुख्तलिफ सूरतें। सूरह ज़ैल में इत्क़ादी या अखलाकी बुराइयों का जिक्र किया जाता है जिन्हें कुरान मजीद ने फसाद फिल अर्ज़ से ताबीर किया है। नंबर 1, कुफ्र और गलबे कुफ्र। मसलन वल्लज़ीन कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। और जिन्होंने कुफ्र किया वो आपस में एक दूसरे के हामी व मददगार हैं, तो अगर तुम ये यानी जिहाद नहीं करोगे तो मुल्क में जुल्म और बड़ा फसाद होगा। नंबर 2, राह हक़ से बिलजब्र रोकना ये फसाद। मसलन अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अज़ाब पर अज़ाब देंगे उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे। नंबर 3, नक़्ज़ अहद और क़ता रहमी। मसलन अल्लज़ीन यंक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युरसल व युफ़सिदून फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो अल्लाह के अहद को मज़बूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। नंबर 4, खुदा की बंदगी और उसके कवानीन की पाबंदी से निकल जाना। मसलन तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसाद। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में अपनी बढ़ाई नहीं चाहते और न फसाद करना चाहते हैं। नंबर 5, हुकूमत पाकर मालिक हकीकी का के बिलमुकाबिल खुद मुख्तारी का इजहार करना और रियाया को बांट कर बाज़ को उठाना और बाज़ को दबाना। मसलन इन्न फ़िरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तन मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। वाक़या ये है कि फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक गिरोह को वो ज़लील करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फिलवाक़े वो मुफ़सिद लोगों में से था। मुल्कगिरी और मफ्तूह कौमों के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक करना। मसलन क़ालतिल मनमूनुका इद्दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अक़िल्लतन व कज़ालिका यफ़अलून। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। नंबर 7, हर तरह के नाला व हथकंडों से नाजायज मकासद पूरे करना। मसलन वकाना फिल मदीनति तिस्अतु रजulin युफ़सिदून फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। इस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाम का काम न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम सालिह और उसके घर वालों पर शब्द मारेंगे और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके ख़ानदान की हिलाकत के मौके पर मौजूद न थे। नंबर 8, हक जाहिर होने के बाद भी उसे मानने से इनकार कर देना। नंबर 9, नाप तौल में कमी करना। नंबर 10,
दौलत समेटना और उसे रोक रखना, ये सब आयतें हमने कोट की है, लेकिन वक्त न होने की वजह से उसे सिर्फ मिसालें देकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह से फवाहिश का इर्तिकाब और कानून फितरत की मुखालिफत करना, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालिफत करना, खेतों बागों और नस्लों को बर्बाद करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे कुरान मजीद फसाद की तरफ से ताबीर करता है। वक्त कम है, बस मैं आखिर में खुलासा पेश करने लगा। मैंने मिसाल के तौर पर मुअज़्ज़ब कौमें आद, समूद और नूह अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन वगैरह को मिसाल के तौर पर जिक्र किया है, लेकिन उसे पेश करने का वक्त नहीं है। मज़कूरा मिसालें उन वाक़यात की हैं जो नुज़ूल कुरान से पहले पेश आ चुके थे और जिनका जिक्र खुद कुरान मजीद ने इबरत व मौइज़त के लिए अपने सफ़हात में महफूज कर दिया है। रहे नुज़ूल कुरान के बाद के हवादिस व आफ़ात और अहद जदीद के वाक़यात, मसलन कहत, ज़लज़ले, सुनामी लहरें, समुद्री तूफ़ान और तबाहकुन सैलाब वगैरह जिनसे बेशुमार लोग हलाक हुए, तो उन्हें भी मज़कूरा मिसालों और किताबुल्लाह में मज़कूर सुन्नत इलाही की रोशनी में बआसानी समझा जा सकता है। कौमों के हलाकत के सिलसिले में अल्लाह ताला अपनी सुन्नत बयान करते हुए फरमाता है, वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, और हम बस्तियों को हिलाक करने वाले नहीं हम बनते मगर उस वक्त जब उनके बाशिंदे अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले बन जाते हैं। दूसरी जगह फरमाया, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और तेरा रब ऐसा नहीं कि वो बस्तियों को हिलाक कर दे किसी जुल्म की पादाश में, जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह में सरगर्म हैं। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने कौमों की हलाकत से मुतालिक अपनी सुन्नत ये बयान की है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक वो जुल्म, उद्वान और फिस्क व फुजूर में मुब्तला न हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला किसी बस्ती को जुल्म व फसाद की पादाश में उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उसके बाशिंदे बहैसियत मजमूई इस्लाह करने वाले हों। यानी अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर उस वक्त आता है जब कौम का मिजाज बहैसियत मजमूई बिगड़ जाता है। इस्लाह करने वाले या तो उसमें बाकी रह ही नहीं जाते या रहते हैं तो खाल निहायत करीब तादाद में, जिसके नतीजे में उनकी इस्लाह की कोशिशें मगलूब और जालिमों का जुल्म उद्वान गालिब आ जाता है। फिर ऐसे जालिमों का फैसला अल्लाह का अज़ाब ही करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मौजूद है कुदरती हवादिस और आफात फसाद फिर का नतीजा। और जैसा कि आपने हवाला दिया, हवाले से अंदाज़ा ये होता है कि आपने वो सारी मिसालें दी थी जो कुरान मजीद में मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तकमील कुरान मजीद के बाद जो कुदरती आफात और हवादिस हुए हैं, गालिबन वो भी आपके प्रोग्राम में है और आइंदा उस पर भी कुछ लिखेंगे आप, तो क्या क्या है जी। ये पहले से ये बात है हमें थी कि जो बात के कुदरती हवादिस व आफात है उस पर भी रोशनी डाली जाए और एक एक करके मिसाल के तौर पर पेश करके उस पर रोशनी डाली जाए। लेकिन वक्त की किल्लत और तवारत से बचने के लिए इसे इस मकाने में नज़रअंदाज किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा इसकी कोशिश की जाएगी। मौलाना मोहम्मद जर्जीस करीमी साहब इदारत तहक़ीक़ात इस्लामी तशरीफ़ लाए हैं और अपना मकाला फसाद फिरस का मफ़हूम और मुआसिर दुनिया में उसके मदारिक के उन्वान से पेश करना है। मौलाना मोहम्मद जर्जीस करीमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह व अस्सलातु वस्सलाम। मेरा मकाला मुख्तसर है। इसमें मैंने फसाद इलाके का कुरानी मफ़हूम और मासिर दुनिया में, यानी इस वक्त दुनिया में उसके क्या मज़ाहिर हैं, उसको समझने की कोशिश की है। फसाद इलाके का कुरानी मफ़हूम के हवाले से कई मकाला पेश हो चुके हैं, तो आयतों को दोहराने की मैं समझता हूँ चंदा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर कुछ वादे आए हैं
मसलन मैंने हर عنوان के तहत सिर्फ एक आयत कोट की है। उसकी वजह यह है कि किसी भी हवाले से 10 आयतें हैं, तो 10 आयतों को कोट करने से मकान तभी हो जाता है और फिर कारी के लिए भी परेशानी होती है, सामने के लिए भी होती है। तो मुख्तसरन मकसद तक पहुँचाने के लिए मैंने इसको इख्तिसार से काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तारीख का ये अजीब अलमिया है कि जिन अक़वाम ने दुनिया में सबसे ज़्यादा खूनरेज़ियाँ की हैं और करोड़ों इंसानों को मौत के घाट उतारा है, आज वही कौमें हमने आलम का चैंपियन बनी हुई। 20वीं सदी मुकम्मल और 21वीं सदी का अब तक का दौर इनकलाबात और जंगों की सदी मानी जाती है। इसी सदी में रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी में बड़े बड़े हुकूमती मार्के आए, जिनमें करोड़ों इंसान मारे गए। करोड़ों भेड़ बकरियां नहीं, करोड़ों इंसान मारे गए। और इसी सदी में जो अजीम जंगें लड़ी गई, जिनमें दुनिया के अक्सर मुतमद्दिन ममालिक आलम इस्लाम को छोड़कर, आपको ये बात ध्यान नशी रखनी चाहिए कि तुर्की के अलावा जंग अजीम अव्वल दौर में तुर्की के अलावा कोई मुल्क शामिल नहीं था बिलावास्ता तरीके से था, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है। आलम इस्लाम को छोड़कर मुलविस थे और मुतासिर भी हुए और करोड़ इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। इसी तरह 21वीं सदी के आगाज में मगरबी ममालिक ने इराक और अफगानिस्तान को ताराज कर दिया और 30 लाख इंसानों के खून से जमीन लानतदार हो गई। आज यही कौमें अपने को आदमी अमन का आलमबरदार साबित करने के लिए ढिंढोरा पीटते नहीं थकती। जेल में कुरान मजीद के तस्वीर फसाद के ज़िम्मे में मासिर दुनिया का जायजा लेने की कोशिश की गई। यहाँ पर मैंने फसाद का लोगों और इस तरह मफ़हूम बयान किया है, छोड़ता हूँ। फसाद की किस्में मुख्तलिफ उन्वान की तरफ मैंने बयान की हैं। सबसे पहली किस्म है अल्लाह उसके रसूल का इनकार या उनसे बगावत। कुरान के मुताला से मालूम होता है कि फसाद की जितनी किस्में हैं, उनमें से हर एक अपनी नौइयत और नतीजा के अतबार से चाहे जितनी भयानक और दुर्दर्श हो, मगर खुदा और रसूल का इनकार और उनसे बगावत उम्मुल मफासिद है। खुदा ने इस चीज़ को फसाद मिलाने की जड़ और बुनियाद करार किया है। आले मगरिब ने साइंसी नजरिए दहरियत पेश किया। इसकी वजह से तौहीद, आखिरत और रिसालत का अकीदा मशरूब होने लगा। चुनांचे दुनिया की आबादी की गालिब तादाद ऐसी है जो या तो सिरे से मज़कूरा नजरिया की असास पर खुदा को मानती ही नहीं या फिर गलत ढंग से मानती है, जिनका हक़ाइक़ से कोई रिश्ता नहीं है। चुनांचे हर नौइयत से जो आज आलमगीर पैमाने पर फसाद बरपा है, उसकी बुनियादी वजह खुदा और रसूल से बगावत है, जो खालिस दीन है। इस फसाद की इस्लामी अकायद में पोशीदा है, जिसकी तालीम कुरान मजीद में दी गई है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया और रसूल के कौमों के फसादात का तज़किरा करते हुए सबसे पहले उन्हें ईमान बिल्लाह और आखिरत की तरफ रुजू करने की दावत दी गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूरतों में बहुत तफसील से आयत वारिद हैं, यहाँ पर उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ आयतें नोट की। नाहक कत्ल नफ्स, इंसान का अव्वलीन हक यह है कि उसे जमीन पर जिंदा रहने दिया जाए और उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाए, इसीलिए उसको अफजलियत का दर्जा हासिल है। मगर जिस शख्स के दिल में इंसान की जान का एहतराम, उसके तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा न हो, बल्कि वो नाहक किसी का खून कर देता हो, तो इंसान और उसके मफादात के खिलाफ इससे बड़ा फसाद ज़मीन में और क्या हो सकता है। कुरान की आयत में बोल के यहाँ पर इस चीज़ को पेश नज़र रखकर रवां सदी की जंगों के जानी नुकसान का जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि उस नौइयत का फसाद किस आला पैमाने पर बर्पा किया गया। पहली जंग अज़ीम 1914 का 1918 में हुए जानी नुकसान का आम अंदाजा यह है कि कमोबेश 1 करोड़ अफराद मारे गए और 2 करोड़ के करीब जख्मी हुए। फिर इस जंग के बाद जिन नुकात पर सुलह की बुनियाद बनी, उनमें आइंदा जंग के जरासीम इस तरह फराहम कर दिए गए थे कि 20-21 साल बाद दूसरी जंग आती 1939 का 1945 शुरू हुई और तमाम ममालिक जो इससे कबल बेशुमार जानी माली नुकसान उठा चुके थे, दोबारा मैदान कारदार में कूद पड़े। इस सदी की तमाम जंगों के जानी नुकसान का तफसीली जायजा बायस तिवालत होगा। फिर जुमला यूँ समझिए कि रवां सदी की छोटी बड़ी इन जंगों में 8 करोड़ लोग मारे गए, या अगर जिंदा भी बचे तो किसी काम के नहीं रह गए। अब आप देखिए ये 8 करोड़ जो है ये किसी रुपए पैसे की गिनती नहीं है,
किसी भेड़ बकरी की गिनती नहीं, इंसानों की गिनती है। 8 करोड़ इंसान मारे गए। ऐसे इंसान को मारा गया जो अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात के हैसियत से दुनिया में पैदा किया। इसी तरह अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया तो मिनटों में 50,000 अफराद हलाक और लाखों अफराद जख्मी हो गए। हालिया खलीदी जंग 17 जनवरी तक 1 मार्च 1990 में इत्तेहादियों ने इराक पर 55,000 से ज्यादा फिजाई हमलों से मजबूत तौर पर 75,000 टन हिंदू पाक यानी यहाँ के पैमाने वजन के मुताबिक 21 लाख मन गोला बारूद गिराया, जिसमें हाल के बुश इंतजामिया के इंकशाफ के मुताबिक, मैंने ये तहरीर कुछ दिनों पहले लिखी थी, उसका हवाला मैंने दिया है। बुश इंतजामिया के इंकशाफ के मुताबिक कम से कम 1 लाख फौजी मारे गए और 3 लाख के करीब जख्मी हुए। गैर फौजियों की अमात का अंदाजा इसके अलावा है। 1990 से 2016 तक इराक में कमोबेश, मेरे पास एक रिपोर्ट थी जिसमें 2016 तक की आदाशुमार बयान किए गए थे, इसलिए मैंने उसका हवाला दिया है। 1990 से लेकर 2016 तक इराक में कमोबेश 30 लाख लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान और शाम में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जान के कत्ल को सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार देता है। हर नस्ल की तबाही। दुनिया में तकलीफकारी की एक सूरत यह भी है कि लोगों के माल और दौलत और बाल बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए। कुरान ने भी इनकी नाहक तबाही को फसाद करा दिया है। मैंने यहाँ पे कुरान का हवाला दिया है। बाद में मैंने अपने मुकाले में थोड़ा सा इजाफा किया था जो इत्तेफाक से इस मजमूए में शामिल नहीं है। मैंने कन्वीनर साहब को चीज़ भेजी थी लेकिन वो प्रिंट नहीं हो पाई, तो मैं उसका हवाला में पेश करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दुनिया के अमीर मुल्कों ने माशी हर नस्ल की तबाही जो दुनिया में हो रही है इस वक्त उसका एक हवाला मैं पेश करना चाह रहा हूँ। दुनिया के अमीर मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी तिजारत पर ऐसे बंद बांध रखे हैं कि अमेरिका और यूरोप की मंडियों तक गरीब मुल्कों की बरामदात की रसाई मुमकिन नहीं, जबकि उनकी मंडियां उन ममालिक की चिरागा बनी हुई हैं। यही वजह है कि आज दुनिया का 5वां हिस्सा गरीबी की आखिरी सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसको $1 योमिया भी मुयसर नहीं है। जबकि यूरोप में हर गाय के लिए सरकारी खजाने से $2 योमिया सब्सिडी दी जाती है, और इसलिए दी जाती है ताकि दूसरे ममालिक से सस्ता दूध मक्खन न मंगवाना पड़े। अमीर ममालिक बैरूनी इमदाद के नाम पर सालाना $50 अरब खर्च करते हैं, जबकि अपने मुल्कों की ज़राअत को तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरी मसनूआत से बचाने के लिए $360 अरब सालाना सब्सिडी देते हैं और गरीब मुल्कों से आने वाली ज़रूरी मसनूआत का रास्ता रोकते हैं। दुनिया में जंग के कारोबार को गर्म रखने के लिए सालाना खर्च अब तकरीबन $1,000 अरब तक पहुँच गया है। इसमें से अमेरिका का हिस्सा 40% है, लेकिन गुर्बत को ख़त्म करने, रोजगार के मौके फराहम करने और ज़िंदगी की सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल फराहम करने की कोई फिक्र नहीं है। अमीर मुल्कों में कायम 500 मल्टीनेशनल कंपनियां कारपोरेशन दुनिया की तजारत के 70% पर काबिज हैं, और उनमें ऐसी कंपनियां भी हैं जिनमें से एक की दौलत दुनिया के 40-50 मुल्कों की दौलत से ज्यादा है। जबकि दुनिया में 80 करोड़ इंसान रोजाना भूखे पेट रात गुजारते हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि गरीब ममालिक अमीर मुल्कों के इस वक्त $45,000 बिलियन से ज्यादा मकबूज हैं, और उन्हें हर साल तकरीबन $250 बिलियन किस्तों की शक्ल में अदा करना पड़ता है, जिसमें असल थोड़ा और बाकी सूद होता है। अब तक सूद की शक्ल में असल से कहीं ज्यादा ये अदा कर चुके हैं। इस तरह की और चीजें इसमें बयान की गई है। फसाद की एक किस्म यह है, देखिए फसाद की एक सूरत यह है कि किसी अमर के तहत गलबे जज्बात से मजबूर होकर ना किसी के माल और दौलत को तबाह कर दिया जाए, ये इसकी एक महदूद सूरत है। मगर दूसरी सूरत यह है कि आलमगीर पैमाने पर मनसूबाबंद अंदाज में मुसलसल हर नस्ल की तबाही के तरीके इख्तियार किए जाए। इस किस्म की मिसाल रवां सदी में बकसरत मिलती है। मिसाल के तौर पर जंग-ए-आज़म अव्वल में 1 खरब
अरब 50 करोड़ डॉलर बराह रास्त खर्च किए गए। बिलवासा खर्च की मिकदार 1,51 अरब 61 करोड़ 25 लाख डॉलर थी। ये आधा शुमार मैंने विलियम एल लेंगर एक मगरबी तारीख दां है, उस किताब का तर्जुमा गुलाम नसरुल बिहार ने किया है, पाकिस्तान से शाया हुई है, उससे मैंने ये आधा शुमार हासिल किए हैं। 40 करोड़ खरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की गई। इतनी रकम से दुनिया की पूरी आबादी को 50 साल तक मुफ्त रोटी दी जा सकती थी और 50 करोड़ खानदानों के लिए अच्छे से मकान बनाए जा सकते थे। हर साल अमेरिका की हुकूमत को 20 करोड़ से 40 करोड़ डॉलर तक की मालियत के फाजिल आलुओं को ज़ाया करने पड़ते हैं और कैलिफोर्निया में करोड़ों रुपए की किशमिश और मुनक्का सूगरों को खिला दी जाती है। अक्टूबर 1932 में जापान में 7,20,000 बेहतरीन मोती इसलिए दरियापुर कर दिए गए थे कि रसद में इजाफा के सबब उसकी कीमत गिरती चली जा रही थी। इसी तरह 1931 और 1934 के दरमियान ब्राजील में 5 करोड़ 60 लाख मन 20 लाख टन काफी यानी कहवा जो है समुद्र में गर्क करके तलब की गई। इस तरह के मिसालें मौजूदा दौर में भी बहुत कसरत मिलती है। उलू बरतरी चाहना, इसके तहत मैंने कुरान की आयात हालत वो माफ कीजिएगा फिरौन के हवाले से जो उलू बरतरी के जिम्मे में जो आयत हमारे ने उसको नकल किया। उसके बाद तफसील ये उलू बरतरी चाहने की एक सूरत यह है कि आदमी इंफरादी तौर पर किसी के मुकाबले में बरतरी चाहे, एक ये सूरत है। एक सूरत यह है कि वो माशरा के तमाम अफराद से बदतर रहना चाहे। एक सूरत यह है कि वो अपने मुल्क या सारी दुनिया में फसाद के जरिए उलू बरतरी चाहे जैसा कि फिरौन ने चाहा था। आखिर उसी की सूरत की मिसाल मगरबी ममालिक यानी रूस और अमेरिका की आपसी रस्साकशी और असलहा की दौर में बाहमी मुसाबकत की है, जो अपने मादी ताकत गजगुलाही के सामने किसी का उभरना गवारा करने के लिए तैयार नहीं। चुनांचे पिछली जंगों के रुनमा होने की बुनियादी वजह यही है कि जंग अजीम अव्वल में मजहब मुदाफ़रत या हुकूक का कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। दूसरी जंग अजीम में जापान सिर्फ इसलिए कि उसने नारा लगाया कि एशिया सिर्फ एशियाओं के लिए है, एटम बम गिराया गया। हालिया खलीजी जंग में अमेरिका ने इराक को सिर्फ इसलिए सत्यानाश कर दिया कि वो उभरता हुआ ताकतवर मुल्क था, या ये कि अमेरिका इसी बहाने दुनिया पर अपनी बालादस्ती साबित करना चाहता था। वह ऐसा क्यों चाहता था? इसलिए कि वो आधे जदीद का फिरौन कहलाए। तारीखी फिरौन ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा दिया था, लेकिन इस नए आलमी फिरौन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यानी नया आलमी निज़ाम का नारा दिया। इन दोनों के दावे खुदाई में कौन सा फर्क है? कतई ताल्लुकात के ज़िम्मे में मैंने कुरान की आयत को की है और इस ज़िम्मे में इराक का जो मसला, इराक और कुवैत का जो मसला पेश आया, तो किस तरह फौरन जो है पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और इराक भी तकरीबन 10 साल तक माशी नाकाबंदी किए रखे और उसकी वजह से लाखों बच्चे और बीमार बूढ़े जो है ग़िज़ा और दवा न मिलने की वजह से वो मर गए। इसी तरह नापतोल में कमी बेशी के ज़िम्मे में जो आम मामलात हैं उसका भी हवाला दिया गया है, लेकिन सबसे अहम हवाला जो है मौजूदा दौर में यह है कि फिलिस्तीन के मसले में कम से कम 40 बार अमेरिका ने जो है इसराइल के हक में वीटो किया। इससे ज्यादा मतलब दोहरे मेयार की और कोई मिसाल नहीं हो सकती पूरी दुनिया के अंदर। जिनसी आवाज़ी फहाशी और उरियानत के हवाले से बहुत सी बातें आ चुकी हैं। इंसान जो है इंसानियत से गिर चुका है और हैवानियत बदतरीन हैवानियत के दायरे में दाखिल हो रहा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आखिर में एक बात यह अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इंसानी हुकूक का नजरिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद तरतीब दिया गया। एक बात जान लीजिए, अक़वाम मुत्तहदा जो है मुसलमानों की जरूरत नहीं थी, अक़वाम मुत्तहदा मगरबी मुल्कों की जरूरत थी, जो उन्होंने अपने मुल्कों में जो गाजर मूली की तरह एक दूसरे को काट रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने सोचा कोई ऐसी पंचायत हो, ऐसा कोई चौपाल बनाया जाए जहां पर कुछ इस तरह के उसूल बनाए जाए और फिर दुनिया में खूनरेज़ियां रोकी जाए। लेकिन अफसोस है उसके फंदे में मुसलमान ममालिक भी आ गए और आज इस तरह जकड़े हुए हैं कि सारे फैसले जो है मुसलमान मुल्कों के खिलाफ हो रहे हैं और मुसलमान जो है मजबूर तमाशाई बने हुए हैं। तो हुकूक का मसला जो है ये मगरबी मुल्कों का मसला है। इस्लाम में कभी हुकूक का मसला पैदा नहीं हुआ है। इस्लाम में सारे इंसानों के हुकूक को और इंसान के जो बाहमी रवाबित हैं, माँ बाप की हैसियत से, मियाँ बीवी की हैसियत से, भाई भाई की हैसियत से,
पड़ोसी के हैसियत से या आम मुसलमान या इंसान की हैसियत से सारे हुकूक को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से बयान किया। तो ये बात हमें जाननी चाहिए। ये सारा तमाशा जो है मगरबी मुल्कों का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फसाद को हम कैसे रोक सकते हैं। ये सवाल जो है यहाँ मौजूद उलमा किराम और मुफक्किरीन से है। आप इसका कोई हल बताएं, इंशाअल्लाह हम फायदा उठाएंगे, दुनिया फायदा उठाएंगे। वाक़ मकाला तो बहुत अच्छा था इस पहलू से भी कि आपने सारी तफसीलात फराहम कर दी और इस वक्त मुआसिर दुनिया में फसाद के जो मज़ाहिर सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल खुल कर सामने आ गए। लेकिन आपके मकाले में सारा फोकस मगरिब की तरफ था, जबकि इधर देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को ताराज कर रहे हैं, तो इस पर कोई गुफ्तगू नहीं आ सकी, जबकि इंसान का तकाजा था कि इसका भी जिक्र किया जाता। दूसरी बात यह है कि जिस मगरबी दुनिया पर हम तनकीद कर रहे हैं, मजमून लिखा था जो जिंदगी के दौर में शाया हुआ था, आधे नबी की गज़वात और 20वीं सदी की जंगें, उसमें मैंने जायजा लिया है। और आप जानते हैं, आलिम हैं और तारीख भी पढ़ते हैं, जितनी जंगें की हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, मजमूई तौर पर अमवात की तादाद कितनी है, मजमूई तौर पर आप देखिए। और देखिए कोई तनासुब ही नहीं जो मगरिबी दुनिया कर रही है, या फिर अभी देखिए 9/11 में जो उसमें बिल्डिंग में जो लोग मारे गए कितने थे, 5,000 थे। क्या ये इसका जवाब फराहम होता है कि 50 लाख लोगों को मार दें? आप बता दीजिए, दुनिया कोई भी उसूल बता दीजिए कि इसका जवाब फराहम होता है कि 5,000 लोगों के बदले में 30 लाख लोगों को मार दिया जाए। तो जाहिर है कि ये तो हमारी बेबसी है, मजबूरी है। जहाँ तक आपने तवज्जो दिलाई है वो बात भी आनी चाहिए, लेकिन ये सब मगरिब की ही कारशैतानी है, हम उसके शिकार हैं। अल्लाह आपको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। आपने हवाला दिया कि वो गल्ला ज़ाया कर देते हैं काफ़ी वगैरह 1931-30, और उसके बाद इतना बड़ा जो 90 साल 80 साल का वक्फा हुआ, इधर के हवाले कुछ आने चाहिए। नहीं, इधर के भी हवाले हैं, मैं बताया ना, वो प्रिंट नहीं आ पाया इसमें। वो मैंने मोबाइल में वो किया था, उसका लिया, लेकिन वो आ नहीं पाया। मैंने मकाले में उसको शामिल किया, बाद में इजाफा किया। तो वो चीज़ें भी हैं आप जो पूछ रहे हैं। शुक्रिया।